Welcome to this video. I am Ismatara, reporter with The Wire. Every year, more than 2 lakh people apply to the Hajj Committee of India for a chance to go for Hajj or the yearly Islamic pilgrimage in Makkah. Worldwide, millions of people also go to Makkah for the pilgrimage every year. The Hajj Committee of India is a government body that comes under the Ministry of Minority Affairs and is interested with organizing the Hajj pilgrimage every year for Indian citizens. The Hajj Committee of India takes care of easing the process of getting visas, passports, making travel as well as accommodation arrangements in Saudi Arabia for the pilgrims every year. In India, by March, already over 2 lakh people had applied, and the first batch of pilgrims was set to fly to Makkah in the first week of June. However, because of the virus induced lockdown, restricted movement, and restrictions on large gatherings, only a few thousand people were allowed to attend the rituals of Hajj pilgrimage this year in Makkah. The Hajj Committee of India also withdrew and said that it would not be sending pilgrims from India this year, keeping in mind the COVID 19 situation. In a notice, the Hajj Committee of India said, it has been decided by the Hajj Committee of India that all the applications for Hajj 2020 stands cancelled. The amount paid by the pilgrims towards Hajj 2020 will be refunded to the pilgrims' account mentioned in the Hajj application form. Pilgrims are not required to submit separate cancellation requests. Pilgrims' passports will be returned to them through the respective state or union territories' Hajj committees. The Hajj Committee of India was now faced with a big challenge to reimburse the money of the over a lakh people who had applied for Hajj and got through. Mr. Maqsood Ahmad Khan, the Chief Executive Officer of Hajj Committee of India, said that people expressed displeasure when they heard that they would not be able to go for Hajj this year. Some people even refused to take their money back. Let's hear more on how the Hajj Committee of India managed funds, managed the reimbursements, and managed to tell people that they would not be able to go for Hajj this year. तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर फॉर्म की हुई कमेटी है जो ऑटोनोमस बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है। ये कमेटी सारे इंडिया के जो हाजी हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मेजर 70% हाजी जाते हैं टोटल कोटा के, उसके लिए ये कमेटी काम करती है। सारे हाजियों के एप्लीकेशंस लेना, उसमें से जितने सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एज पर मुस्लिम पॉपुलेशन और सीट्स अलोकेट करना, मक्का में मदीना में उनको हज के लिए भेजने का ट्रैवल अरेंजमेंट, स्टे अरेंजमेंट और सारे वीजा, पासपोर्ट और सारे जो काम होते हैं वो सारा काम ये कमेटी खुद करती है। इसमें आमतौर पे हज जब खत्म होता है उसके 10-15 दिन बाद हमारी हज रिव्यू मीटिंग होती है, HRM। इसमें नए हज की पॉलिसीज डिसाइड होती है और हज अनाउंस होता है। हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनकी कोशिशों की वजह से पिछले 3 सालों में ये बहुत सारी प्रोसेस हमारी डिजिटलाइज हुई है और कंप्यूटराइज हुई है और हज 2020 के जो टोटल फॉर्म्स हमने ऑनलाइन लिए थे, इसमें हमारा जो हज 2020 का मरहला था वो काफी आगे आ चुका था कि हाजी अपना सिलेक्शंस भी कर चुके थे, पासपोर्ट जमा कर चुके थे, सारे डिटेल्स दे चुके थे। बहुत सारे हाजियों ने तो दावत भी खा ली थी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी भर दिया था 81,000। फिर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहता है 1,20,000 जो हम लेते हैं हाजियों से, वो भी बहुत सारे लोगों ने भर दिया था। मार्च एंड तक हाजी बस अब जाने की तैयारी में थे। हमारा फर्स्ट जो फ्लाइट था वो जून की फर्स्ट वीक से शेड्यूल्ड था, सेकंड या थर्ड वीक से 20 जून से आसपास। लेकिन मार्च के बाद सिचुएशन थोड़ी बदल गई। लेकिन फिर भी इस साल जो है हमारे पास लगभग 2,13,000 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें हमको एक उम्मीद थी कि 1,40,000 का कोटा हमको मिलेगा, जिसमें से 1,25,000 हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था कोटा का वो मिल चुका था। लोगों के बहुत यानी हम लोग तो इंतजार में थे क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा था हज अरेंजमेंट का, उसको फरवरी में सऊदी की तरफ से रोका गया था कि इसको कहा था कि इसको आगे कोई आप इकदाम मत उठाइए, फर्दर कमिटमेंट मत कीजिए। तो फरवरी के बाद से प्रोसेस स्टॉप किया गया था और मार्च फर्स्ट वीक तक भी इसका कोई इंटीमेशन नहीं आया था और ये हालात बिगड़ती जा रही थी। तो हमारी हज कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई जो लोग ऑन वॉलंटरीली अपनी तरफ से विड्रॉ करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को देखकर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने 100% रिफंड का और ऑनलाइन रिफंड का प्रोविजन किया था। तो वो प्रोसेस तकरीबन मार्च एंड तक चलता रहा, मार्च अप्रैल तक। और वो उस वक्त हाजियों की रिएक्शन यही थी कि ये लोग किसी भी तरीके से जाना चाहते थे। हमको अगर नहीं है तो हम
ज्यादा खर्च से भी जाएंगे, इस साल नहीं है तो अगले साल जाएंगे, लेकिन हमारे पैसे मत वापस कीजिए, हमारा जो क्लेम है वो मत जाने दीजिए, हमको जाने का प्रोविजन कीजिए। इस तरीके के उनके रुझानात थे और हर कोई आखिरी लम्हे तक इंतजार करने के लिए तैयार था। और एकदम ये लास्ट मोमेंट पे जब डिक्लेयर हुआ कि नहीं, कोई बाहर से नहीं आएगा और वो वहीं के जो रेसिडेंट है वही हज करेंगे, तब वो हमको जो बचे हुए जो हाजीज थे जिन्होंने कैंसिल नहीं किया था, जो ज्यादा तादाद में, उनका कैंसिलेशन बाय डिफॉल्ट करना पड़ा। 2020 में जो हाजियों का कलेक्शन हुआ था वो 100% डिजिटाइजेशन के तहत वो पूरा ऑनलाइन कलेक्शन हुआ था। मतलब जो हाजी ने पैसा भरा था उसी इंस्टेंट में ना सिर्फ हज हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा गया, बल्कि एक्चुअली हाजी का जो हमारे पास जो एक इमेज रिफ्लेक्टिव अकाउंट रहता है, जो इंडियन हज मिशन के जो सॉफ्टवेयर में है, उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग हुई है। पहले ये पोस्टिंग 2019 तक मैन्युअली हुआ करती थी। बैंक हमको लिस्ट भेजता था कि भाई ये हाजी ने इतने इस दिन में इतने पैसे भरे हैं, हम उसको फिर अपडेट करते थे। वो क्वांटम काफी रहता था, उसमें 15-15, 20 दिन, महीना का बैकलॉग होता था और हाजी कभी मिस आउट भी होते थे कि भाई पैसा हमने भरा है लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं दिख रहा है। तो जो हमारा जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हाजी का अकाउंट है, उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो इंस्टेंटेनियसली हुआ था, रियल टाइम में हुआ था। जिस टाइम ने हाजी ने पैसा भरा उसी टाइम उसके अकाउंट में हमारे सॉफ्टवेयर में वो पैसा दिखने लगा और उसको इमीडिएट सॉफ्टवेयर मैसेज आने लगा। तो ये जो ऑनलाइन हाजी ने डिटेल्स भरे थे अपने अकाउंट के, इन केस एनी अमाउंट इज टू बी रिफंडेड, इन विच अकाउंट इट शुड गो, वो डिटेल्स स्टेट हज कमेटी को वेरीफाई करने होते हैं और उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो चेक का जेरोक्स है या पासबुक का जेरोक्स है, वो अपलोड करना होता है। तो मेन हमारे पास चैलेंज ये था कि ये जो हाजियों के अकाउंट नंबर है जो हाजी ने भरे हैं, अगर एक भी नंबर गलत हो जाता है तो दूसरे अकाउंट में जाता है या रिफंड आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। तो इसलिए हमने हमारा जो लॉकडाउन में यहाँ हज हाउस में स्टाफ बैठकर रहा, वो अपने घर से यहाँ आकर शिफ्ट हो गए। वो लोग हज हाउस में रहे, 20-20 दिन, 15-15 दिन रोटेशन में लोग यहाँ रहे और उन्होंने जो स्टेट हज कमेटीज का काम है वो खुद हमारे स्टाफ ने किया। वो सारे अकाउंट्स को वेरीफाई किया कि जो हाजी ने अकाउंट नंबर भरा है, आईएफएससी कोड दिया है, वो सही है या नहीं। इसके लिए उसके बाद फिर हम पेमेंट करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये पोजीशन है कि हमने 99.9% लोगों के पैसे वापस कर दिए हैं। सिर्फ 500 हाजी ऐसे हैं जिनके अभी तक हमको डिटेल मिले नहीं है, उनके अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। और इतने सारे 1,25,000 हाजियों के ट्रांजेक्शन में सिर्फ 9 हाजियों के पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में जाने की वारदात हुई, वो जिसमें से हम लोग तकरीबन 4 केसेस अभी बचे हैं। तो एक बहुत एररलेस ये काम हुआ है क्योंकि हमने इसमें कंप्यूटर्स का और डिजिटाइजेशन का फायदा उठाया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।